Ji, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Once again, I'm Shazia is here with all of you, and I'm hoping that all of you are safe at home. And let's start with today's lecture, and that is about SSC2 10th Biology, and I'm at chapter number 40, and that is reproduction. So, a few of the topics from this chapter as well I want to upload these days. And my today's topic is sexual reproduction in plants. So basically, is it this is alternation of generation? It's all about alternation and generation in plants. So some of my students have requested me to discuss alternation of generation in detail. So let's start with the sexual reproduction in plants. So you all know have a good idea about this figure. So what is that? This is a flower, right? So this is a flower, and sexual reproduction is basically is because of the presence of the male reproductive system, that is stamen, and the female reproductive system, that is carpel, right? So we will discuss the sexual reproduction in flowering plants in the next lecture, but in this lecture I just wanted to tell you that this is the anther which is going to produce the male reproductive organ, and that is the ovary which is going to produce the female reproductive structure, that is called the gamete or ovule, sorry, macrospore egg. ठीक हो गया. So sexual reproduction, it involves the fusion of the gametes, sperm and egg cell. And I have already told you that anther is going to produce the pollen, which is the sperm cell, and the uh, ovary is going to produce the egg cells, which are also called as this gamete, right? So both the egg and sperm cells are the gametic structures or gamete cells. So these structures get produced in special structures, and these special structures are called the anther in case of male reproductive system, male reproductive structure, and ovary in case of female reproductive structure. So let's major plants group. So first of all, we all know that whenever there is a need of sexual reproduction, both the parents are needed. So let's discuss which of the plant groups are going to have to go through the sexual reproduction. One is the major plant group is mosses. I'm just about to going to show you. Fern, and then seeded plants. And we have two different groups in seeded plants, that is gymnosperms and angiosperms. This text is totally about the text given in your book. There are three different groups of plants are discussed in your book: mosses, ferns, and seeded plants. And seeded plants are of two types: gymnosperms and angiosperms. Gymno, naked, sperm means seeds, angio, enclosed, sperm means seeds, right? छुपे हुए seeds or खुले हुए seeds. We will discuss later in the lecture. Now, major groups of plants, once again, this is an example. Let me take the pointer first. Okay, this is that small plant जो आपको शायद नजर आ रहा था, तो पतली सी नीचे लंबी डंडी है और ऊपर कोई स्ट्रक्चर है, दैट व्हाट इज मॉस. ठीक है. एक और एग्जांपल है, ये देखें, ग्रीन ग्रीन पूरी जमीन भरी हुई है पौधे से. ऐसे हमें लगता है शायद ये एल्गी है, बट दिस इज नॉट एल्गी, राइट? एल्गी इज स्ट्रिक्टली very close to water, and in fact within the water, but these plants are close to water. Moist environment is needed for these plants. So this is called as moss. Then this type of plants are basically the ferns. ठीक है. इस तरह के आपने कभी शायद पत्ते देखे हैं, दरमियान में देख रहे हैं ब्लैक सी एक लाइन नजर आ रही है. So these plants are basically the ferns. और जिस तरह ये छोटे plants हैं ये, मगर इनके leaves इस तरह के होते हैं, दरमियान में एक लंबी सी डंडी चल रही होती है, उसके साथ पत्ते लगे होते हैं, and these are the ferns. Then this is gymnosperms. जिम्नोस्पर्म्स जिनमें एक ये शामिल है फाइन, जिसमें ये कोन्स बनती हैं. ये कोन्स आपने मरी जाते हुए देखी होंगी. सो दीज आर द ग्रुप ऑफ द प्लांट्स व्हिच आर कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म्स. एनजीओ की पिक्चर मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर टोटली है ही अबाउट एनजियोस्पर्म्स. ओके. नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स as far as mosses and ferns are concerned. ये जो फिगर साथ आपको नजर आ रही है, these are the sperms of the plants, right? Lower plants and sperms. अब देख रहे हो सबके साथ कोई ना कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर लगा हुआ है दोनों साइडों पर, मेन सेल, और दोनों साइडों पे धागे से लगे हुए हैं. ये जो धागे लाइक स्ट्रक्चर है ना, दीज आर द फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर, राइट? मोटाइल है, मूव कर सकते हैं. तो तमाम तरह ऐसे पौधे जो पानी के में रहते हैं या पानी के करीब रहते हैं, या जिन्हें वाटर की ज़रूरत है फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, आर हैविंग द मोटाइल
type of sperm cells. So in mosses and ferns, sperms are motile. Motile का मतलब जो move कर सकते हैं. Can swim to egg cells. वो swim भी कर सकते हैं if they are in the water. So they need water for sexual reproduction. तो चूंकि अब फ्लैजिला टाइप स्ट्रक्चर इस तरह का है that they need to move. So liquid environment is helpful for the movement. So ये क्या करते हैं कि ये water में move कर सकते हैं. They need water for sexual reproduction. Then, while seeded plants do not need water for sexual plants, as far as seeded plants are concerned, so there is no need of transmission of for their transmission of the sperms from anther to the stigma. उनको पानी की ज़रूरत नहीं होती. उनका डिस्पर्सल ऑफ पोलन किसी और तरह से होता है. मतलब पॉलिनेशन का प्रोसेस थोड़े डिफरेंट होते हैं. लेकिन एज फार एज मॉसेस एंड फर्न्स आर कंसर्न, बोथ ऑफ देम आर नीडिंग flagellated sperm cells. While seeded plants, they do not need water for their reproduction, for their pollination and sexual reproduction. Okay, then alternation of generation. Alternation means बारी बारी आना है ना, alternate करना, एक दफ़ा ये एक दफ़ा वो. आपके पास दो कमीज़ें हैं, एक दिन आप रेड पहनते हैं, दूसरे दिन वाइट पहनते हैं, फिर रेड फिर वाइट, ऑल्टरनेट कर लेते हैं, ठीक है ना. या आपको कोई पढ़ाने आते हैं सर, वो ऑल्टरनेट डेज पर आते हैं. मतलब सैटरडे को आते हैं, फिर संडे को नहीं आते, मंडे को आते हैं, फिर ट्यूसडे को नहीं आते, वेंसडे को आते हैं. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेशन, राइट. एंड दिस इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस. यानी कि कोई पूरी नस्ल है भाई जिसने ऑल्टरनेट करना है. So, क्या रीज़न है, क्या मामला है ये. प्लांट्स ऑल्टरनेट बिटवीन टू टाइप्स ऑफ जनरेशंस. पौधों में दो तरह की, कंप्लीटली दो तरह की जनरेशन नजर आती हैं. एक का नाम है गेमीटोफाइट जनरेशन और दूसरी का नाम है स्पोरोफाइट जनरेशन, ठीक है ना. ऑल्टरनेट बिटवीन टू टाइप्स ऑफ जनरेशन, गेमीटोफाइट जनरेशन एंड स्पोरोफाइट जनरेशन. पहले तो नाम याद कर लो यहाँ पे. ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में दो तरह की जनरेशन हैं, गेमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट. यहाँ हमने नाम याद कर लिए. क्या यहाँ तक हमने यहाँ नाम याद कर लिए हैं. अभी तक हमने सिर्फ ये देखा कि सेक्सुअल स्पोर्स, जब भी सेक्सुअल प्रोडक्शन करनी होती है तो दो तरह के गेमीट्स चाहिए, स्पर्म्स एंड एग्स. स्पर्म्स प्रोड्यूस होने की अलग जगह है, गेमीट प्रोड्यूस होने की, सॉरी, एग प्रोड्यूस होने की अलग जगह है. तीसरी बात हमने देखी टाइप्स ऑफ पौधे, ठीक है ना. कौन कौन से पौधे हैं, सब सुन रहे हो, सो रहे हो, जाग जाओ. अच्छा, पौधे देखे हमने कौन से, मॉस, फर्न, सीडेड प्लांट्स, मेजर पौधों के ग्रुप्स हैं ये. Then we have come up to the alternation of generation, and we have seen that there are two different kinds of generation. One is gametophyte. Gamete producing. Phyte means poda, plant. Sporophyte, spore producing. Phyte mean poda. यानी कि गेमीट प्रोड्यूस करने वाला पौधा, स्पोर प्रोड्यूस करने वाला पौधा, ठीक है. गेमीटोफाइट जनरेशन, स्पोरोफाइट जनरेशन. ओके, देन व्हाट इज अ गेमीटोफाइट जनरेशन. ये जनरेशन हैप्लॉइड है, इसका हर सेल हैप्लॉइड है, ठीक है. इस गेमेटोफाइट जनरेशन का हर सेल इज हैप्लॉइड एंड इट इज गेमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन. ये इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन है. ये आपने यहीं से कॉपी कर लेनी, इसके स्क्रीनशॉट्स लें लेक्चर के और अपनी कॉपी पे, या तो कॉपी पे नोट कर लें या अपने फ़ोन में सेव कर लें, जिस तरह भी आपको आसान लगे. दिस इज द कंप्लीट definition of a gametophyte generation. This generation is haploid and it is gamete producing. And this generation is diploid and it is spore producing generation. It is spore producing generation. Now let's discuss what is a gametophyte generation. कैसी होती है? Characteristics of gametophyte generation, right? These are characteristics of gametophyte generation. First of all, it is a small. ठीक है. अब ये कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जिसमें ये स्मॉल नहीं भी थी, लेकिन हम उन्हीं सारे ग्रुप्स को डिस्कस कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट हैं. The whole world is filled with the seeded plants, and in seeded plants and in the ferns or in all these groups, gametophyte generation is dependent, is not depend is dependent over sporophyte generation, ठीक है ना. उन सब पौधों में इस तरह है, इसलिए gametophyte generation स्मॉल है, ठीक है. ओके, गेमीट प्रोड्यूसिंग है, ये तो हमें अभी तक याद हो चुकी है बात. दैट गेमीटोफाइट का नाम ही बता रहा है कि दैट दिस इज द जनरेशन विच इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ गेमीट. एंड देन गेमीट्स आर हैप्लॉइड, ये भी हमें पता है. हमें पता है ना ये गेमीट्स आर हैप्लॉइड, हमने 9th में पढ़ लिया है ये, ठीक है. दोनों में ह्यूमन बींग्स की एग्जाम्पल ले लो. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग हैज़ 46 chromosomes while the gametes of human beings have 23 chromosomes, right? Half of them कि वो haploid होती हैं, ठीक है ना. So plants के gametes भी haploid हैं. Then produced by mitosis. Now this is the most important point in this topic. The most important line, the most important concept, that this is gametophyte generation
is haploid and it is produced by mitosis, ठीक है ना। यानी कि जो गेमीट्स इसमें प्रोड्यूस हुए हैं वो कैसे प्रोड्यूस हुए हैं, गेमीट्स बाय द वे, गेमिटोफाइड जनरेशन नहीं, गेमीट्स जो हैं आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस, ठीक है। ये बात याद रखनी है हमने, दैट गेमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस, ठीक है। तमाम तर वर्ल्ड में जहाँ भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही किसी भी एनिमल में, कहीं पर भी, वहाँ पे गेमीट्स के रिजल्ट में हमेशा मियोसिस होती है और फिर गेमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, बट नॉट इन केस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। यहाँ माइटोसिस होती है, मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी कि कैसे, अभी ये पॉइंट याद रखो। फिर इट इज़ डिपेंडेंट इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, इसका मतलब है कि कुछ पौधों में ये डिपेंडेंट नहीं होती और स्पोरोफाइट इस पर डिपेंडेंट होती है, ठीक हो गया। दीज हैप्लॉइड सेल्स गेट फ्यूज एंड डेवलप इनटू जाइगोट। अब ये दोनों गेमीट्स, मेल गेमीट फीमेल गेमीट मिली और जाइगोट बन गया। जाइगोट डेवलप्स इनटू अ स्पोरोफाइट जनरेशन, ये स्पोरोफाइट जनरेशन में कन्वर्ट हो गई, और मीन्स कि स्पोरो गेमीटोफाइट जनरेशन मेच्योर हुई, गेमीट बनाए, गेमीट फ्यूज हुए, जाइगोट बना, जाइगोट से आगे स्पोरोफाइट शुरू हो गई। इनफैक्ट जाइगोट is the first cell of sporophyte generation. Please keep this in your mind, that zygote is the first cell of gametophyte generation. Now look at this diagram. This is gametophyte generation. Gametophyte generation, right? Gametophyte generation produces gametes, eggs and sperms. Gametes unite to form zygote. Zygote grows into sporophyte generation. फिर यहाँ पे आ गई स्पोरोफाइट जनरेशन। फिर स्पोरोफाइट जनरेशन ने स्पोर्स प्रोड्यूस किए बाय मियोसिस। यहाँ पे लिखा जाएगा माइटोसिस, यहाँ पे लिखा जाएगा मियोसिस। स्पोर्स प्रोड्यूस हुए, स्पोर जाके कहीं गिर गए, जर्मिनेट हुए, अब स्पोर्स की तो मियोसिस से बने, ऑब्वियसली ये तो है ही हैप्लॉइड। हैप्लॉइड होने पे वो मेच्योर होकर उन्होंने पौधा बना दिया, वो बन गया गेमिटोफाइट, ठीक है ना। यूं ये ऑल्टरनेट करते हैं। अब मैं थोड़ी देर में आपको उसका मकसद भी बताऊंगी कि ऐसा हुआ क्यों है। फिर आगे स्पोरोफाइट जनरेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये डिप्लॉयड सेल्स हैं, पूरी प्लांट बॉडी जो होगी वो डिप्लॉयड होगी स्पोरोफाइट जनरेशन की। ये बेग होगी, इंडिपेंडेंट होगी, स्पोर प्रोड्यूसिंग होगी, डोमिनेंट है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में। स्पोर्स आर हैप्लॉइड प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस, गेमीट्स आर हैप्लॉइड प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस, ठीक है ना। वो पहले से ही हैप्लॉइड है, वो कैसे मियोसिस करेंगे, मजीद हैप्लॉइड होने की तो जरूरत नहीं है, इसलिए वहाँ माइटोसिस होती है। लेकिन स्पोर्स प्रोड्यूस होने से पहले जो बॉडी होती है वो डिप्लॉयड होती है, इसलिए वहाँ मियोसिस का होना ज़रूरी है। मियोसिस हुई, हैप्लॉइड स्पोर्स बने। दीज स्पोर्स गेट डेवलप इनटू गेमीटोफाइट जनरेशन, और ये स्पोर्स गेमीटोफाइट जनरेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये इसी फिगर में जो साथ में मैंने थोड़ी पहले दिखाई है, सेम फिगर मैंने यहाँ भी अटैच की थी ताकि आपको सेम कॉन्सेप्ट यहीं से मिल जाए। Now let's see a diagram. ये एक फर्न की एग्जांपल है। जो फर्न प्लांट्स होते हैं ना, मैंने बताया था इस तरह का पता था उसका, है ना। तो फर्न जो है ये एक फर्न है जनाब। इसमें मियोसिस हुई, इसके जो वो लीव्स हैं उनके ऊपर स्पर्म्स और एग्स डेवलप हो रहे हैं। डेवलप होने पर, मियोसिस होने पर रिप्रोडक्टिव सेल्स हैप्लॉइड सेल्स बन गए, और हैप्लॉइड सेल से माइटोसिस हुई। ये स्पोर्स हैं, ठीक है। ये स्पोर्स कहीं गिर गए, गिरे और ये चीज़ डेवलप हो गई। ये ग्रीन कलर की भी है और इसके अंदर मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं अलग अलग। ये है, इसका हर सेल हैप्लॉइड है, इसका हर सेल इस वक्त हैप्लॉइड है। क्यों हैप्लॉइड है? क्योंकि पीछे ही हैप्लॉइड बन चुका था, मियोसिस होने पे हैप्लॉइड बन चुका था। फिर माइटोसिस हुई तो ये बड़ी सी चीज़ बन गई, और इसने माइटोसिस के थ्रू हैप्लॉइड गेमीट्स दिए। इसने ये दोनों गेमीट्स देने हैं, मेल और फीमेल, ठीक है ना। गेमीट्स आए, गेमीट्स की फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन हुई तो फिर फर्टिलाइजेशन हुई तो जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने पे फिर माइटोसिस हो गया। अब ये जाइगोट जो है स्पोरोफाइट जनरेशन का पहला सेल है, ये डिप्लॉयड इंडिविजुअल बन गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का कॉन्सेप्ट सबसे खूबसूरत समझ आता है लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस के थ्रू, ठीक है। ये एक लोअर प्लांट है और इसमें वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते, इसलिए मैं इसको लोअर प्लांट कह रही हूँ। अब आप इसको बहुत ध्यान से देखो, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस। अब साइकिल में ये होता है कि हमें पता नहीं चलता हम कहाँ से शुरू करें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं मेल गेमीटोफाइट और फीमेल गेमीटोफाइट से, ठीक है ना। मैं यहाँ से स्टार्ट करने लगी हूँ। ये मेल गेमीटोफाइट है, इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके अंदर मेल गेमीट प्रोड्यूस होगा। ये फीमेल गेमीटोफाइट है जिसके अंदर ऊपर फीमेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर स्पर्म एग्स बनेंगे, ठीक हो गया। अब ये मेल गेमीटोफाइट नीचे लिखा हुआ भी है ना, आप देख रहे हो 1N लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हैप्लॉइड बॉडी है। देखो, अच्छी वाली बॉडी है और ये हैप्लॉइड है, ओके। अब यहाँ पे स्पर्म्स प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर भी है, यहाँ पे
एग्स प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर पे अगर दोनों चीज़ें बनेंगी माइटोटिकली, ठीक है, ये देखो इसकी टॉप पे जो ब्रांचेस होंगी उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर है, यहाँ से स्पर्म्स निकल कर वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके इस वाले स्ट्रक्चर में एंटर हो जाएंगे, ये ओवरी, ये इसका आर्चिगोनियम है, मतलब ये इसकी वो जगह है जहाँ पे एग्स इसने रखे हुए हैं, वो भी शुरू वाली ब्रांचेस में, यानी कि इन इस जगहों पे ये है, ठीक है। इसमें से स्पर्म्स निकल कर इसमें वाटर के थ्रू एंटर हो गया, ठीक है, ये एंटर हो रहा है, नज़र भी आ रहा है, ये यहाँ से निकल रहा है स्पर्म और यहाँ से मूव करके ये इसके अंदर एंटर हो गया, ये अंदर एग पड़ा हुआ है, ठीक है, ये स्पर्म्स आ रहे हैं। अच्छा, होने के बाद ये स्पर्म में ये एग है, इन दोनों की फ्यूजन हो गई, ठीक है, ये दोनों हैप्लॉइड है ऑब्वियसली, दोनों के फ्यूजन होते ही देयर वी हैव गॉट अ zygote, and zygote and then with it will convert into embryo, and embryo is obviously zygote की क्या हुई, mitosis, एंड बिकॉज ऑफ द माइटोसिस उनका नंबर तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया और वो एक पूरी प्लांट बॉडी बन गए, ठीक है, ये वो प्लांट बॉडी पूरी बन गई जो ब्राउन से कलर की है। अच्छा, अब ये ब्राउन से कलर की जो बॉडी है ये मच्योर हो गई, ठीक है, ये स्पोरोफाइट जनरेशन है, लिखा हुआ भी है स्पोरोफाइट जनरेशन 2n। ये जो स्पोरोफाइट जनरेशन है इसके जो अंदर सेल्स थे, अपर पोर्शन जो है इसका, इट इज़ कंसर्न विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस रीजन में होती है मियोसिस, ठीक है, इसकी जैसी मियोसिस हुई इन सेल्स के अंदर, हमारी बॉडी में भी तो पूरी बॉडी में, मेल्स की बॉडी में टेस्टीज और फीमेल्स की बॉडीज में ओवरीज है ना, पूरी बॉडी में और कहीं मियोसिस नहीं होती, सिर्फ गॉनेड्स में होती है, ऐसे ही बात है ना। तो अब इसकी अभी बाकी पूरी बॉडी में कहीं नहीं हुई, लेकिन इस रीजन में मियोसिस हुई, क्योंकि यही वो सेल्स हैं जहाँ मियोसिस पॉसिबल थी, मियोसिस के लिए डिप्लॉयड सेल्स चाहिए, इसलिए पहले ये डिप्लॉयड बना और डिप्लॉयड होने के बाद इसकी मियोसिस हुई, मियोसिस होने पे बेशुमार स्पोर्स मिले, स्पोर्स मिले और स्पोर्स जहाँ भी गिरे वहाँ से नया पौधा निकलना शुरू हो गया, नया पौधा निकलना शुरू हुआ तो जो फीमेल, अब मियोसिस का रिजल्ट है, कोई मेल्स बन गए कोई फीमेल्स बन गई, जो मेल्स बने वो मेल गेमीटोफाइट में कन्वर्ट हो गए, जो फीमेल्स बनी वो फीमेल गेमीटोफाइट में कन्वर्ट हो गई, ठीक है ना, यूं ये साइकिल कंप्लीट हो गया और यहाँ दोबारा से मेल गेमीटोफाइट, अब आपको पता चल गया कि ये स्पोर्स ही पीछे से हैप्लॉइड हैं, तो ऑब्वियसली आगे जो बॉडी इनसे डेवलप होगी वो भी हैप्लॉइड ही होगी ना फिर, ठीक है, तो पीछे से ही वो हैप्लॉइड हो चुका था, लेकिन जब गेमीट बना इसके अंदर, इस जनरेशन में मेच्योर होना है, मेच्योर होने के बाद गेमीट बनाना है, तो जब गेमीट बना तो आपने देखा कि वो माइटोसिस से बना, ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। अब ये मैं आपको बताती हूँ इसका मकसद क्या था, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में पौधे भरने थे, अब हम जानते हैं कि वेन एवर देयर इज अ केस ऑफ अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, इन दैट केस वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी एंड फूड अवेलेबिलिटी एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ बोथ द सेक्सेस, ठीक है ना, जब भी सेक्शुअल प्रोडक्शन करनी है तो दोनों सेक्सेस का होना भी ज़रूरी है, पहली बात, और दूसरी बात यह है कि एनर्जी होने की भी ज़रूरत है, क्योंकि वो एक एनर्जी कंज्यूमिंग रिएक्शन है, आई मीन प्रोसेस है। तो फिर अब क्या हुआ कि जब आपकी जब अब प्लांट्स का नंबर इस तरह बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहा था, तो अल्लाह ताला ने उनके अंदर एक मैकेनिज्म डाला, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, के एक जनरेशन आप गुजारो सेक्सुअली ए सेक्सुअली, ए सेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या होता है, बेशुमार सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, राइट, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन प्रोड्यूस थ्रू ए सेक्सुअल प्रोडक्शन। अब इसी तरह ही हुआ, बहुत जितने स्पोर्स आए सबसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बन गई, अब वो सब ने बेशुमार स्पर्म्स निकाले और एग्स निकाले, और फिर इस तरह क्या हुआ, एक दफ़ा वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते थे और नेक्स्ट टाइम अब वो अगर सिर्फ ए सेक्सुअल करते रहते तो नंबर तो इंक्रीज हो जाता, लेकिन सेक्सुअल वेरिएबिलिटी ना आती, वेरिएशंस ना आती ना पौधों के अंदर, तो उन्होंने एक दफ़ा ए सेक्सुअल रिप्रोड्यूस किया और एक दफ़ा सेक्सुअल रिप्रोड्यूशन किया, अगर साल में वो 2 दफ़ा रिप्रोड्यूस करते थे तो एक बार वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते थे, यानी कि स्पोर्स गिरे ज़मीन पे, जैसे सीड हम डालते हैं, स्पोर्स गिरे और एक पौधा बना, पौधा बड़ा हुआ, फिर उसमें इतना मच्योर हुआ कि उसमें गेमीट प्रोड्यूसिंग साइट्स प्रोड्यूस हुई, सपोज करो उसमें 4 मंथ्स लग गए, फिर उसमें से गेमीट निकले और दोनों मेल और फीमेल गेमीट फ्यूज़ किया और जाइगोट बना, ठीक है, अब ये जाइगोट कहीं गिरा, ये भी अब ये सीड है, प्रॉपर सीड है, ये सीड कहीं गया, गिरा जाइगोट और उसको इन्वायरमेंट मिला, फूड मिला, तो वहाँ से फिर एक नया पौधा निकला, फिर वो इतना बड़ा हुआ कि उसके सेक्सुअली मेच्योर ऑर्गन्स डेवलप हुए, जब इनके मेल और फीमेल ऑर्गन्स डेवलप हो गए, जब फिर स्पर्म्स और एग्स बने उनके अंदर, और फिर वो सॉरी जो बने और उसके अंदर उनकी स्पोर्स प्रोड्यूस हुए मियोसिस के थ्रू, फिर ये स्पोर्स पूरी दुनिया में फैले, फिर स्पोर्स से गेमीटोफाइट जनरेशन, फिर गेमीटोफाइट जनरेशन की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में फिर स्पोर, सो ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसलिए हुई
ताकि पूरी दुनिया को पौधों से भरा जा सके। ठीक है, तो जो आपका हमारा आज का नौ बाहर पौधा जो खड़ा हुआ है जिसको हम मॉडर्न प्लांट कहते हैं, यानी कि एंजियोस्पर्म, विच आर द मोस्ट डेवलप्ड प्लांट्स, दीज आर कॉल्ड एज मॉडर्न प्लांट्स। व्हाई दे आर कॉल्ड एज मॉडर्न प्लांट्स? बिकॉज दे आर, जो इनका पौधा बाहर नजर आता है आपको, दे आर स्पोरोफाइट, राइट। इनमें डोमिनेंट स्पोरोफाइट है, और जो इनकी गेमीटोफाइट जनरेशन है वो फ्लावर के अंदर होती है, इंतहाई स्मॉल, शॉर्ट लिव्ड। सो अब आप जो है गेमीटोफाइट जनरेशन बहुत छोटी है, क्योंकि दुनिया पौधों से भर चुकी है, वो अपनी पीक डेवलपमेंट की पीक पर आ चुके हैं। ओके, सो आई एम होपिंग कि आपको ऑल्टरनेशन और जनरेशन का कॉन्सेप्ट कुछ कुछ समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो दोबारा बताइएगा, मैं फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी। और इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू, एंड यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम, राइट मी इन द कॉमेंट्स। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ऑल द बेस्ट, अच्छी सी प्रिपरेशन करें। ये याद रखें, अगर इस साल रिड्यूस सिलेबस हुआ है तो वो सब के लिए हुआ है। बहुत अच्छी सी तैयारी करें। वीडियो को अगर आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। थैंक यू ऑल, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।